Hello everyone, welcome to Students Point. आज है 5 फरवरी and we are going to see all of the important questions for the day. So pay your attention till the end. And to get the updates of all the videos, you can join us on Telegram by writing the channel's name Students Point. आप हमें Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं by writing the username The Students Point. और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे then don't hesitate to like the video and share the video with your friends and loved ones. Also don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to receive the notification of all the videos. Pressing the bell icon is important to receive the notification, otherwise just after subscribing you will not get the notification of the videos. Let's begin now. Now here is the question for the day. I have taken a previous question here, that which became the sixth Arab country to normalize relations with Israel. Let's see how many of you can recall this previous or week's old question. Let's begin now. The first question. पंडित भीमसेन गुजराज जोशी जो कि एक इंडियन वोकलिस्ट हैं, ही बिलोंग टू विच स्टेट? सो पंडित भीमसेन गुजराज जोशी बिलोंग टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो हियर डी इज़ द राइट आंसर. उनका जन्म हुआ था सन 1922 में, उनकी मृत्यु हुई 2011 में. ही वॉज एन इंडियन वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन. ही इज़ नोन फॉर द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग. ये आर्ट एंड कल्चर में फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग सिखाया जाता है. इन दैट Khayal is one form, and he was also popular for devotional music or bhajans and abhangs. Bhimsen Joshi belonged to Kirana Gharana tradition of Hindustani classical music. He was instrumental in organizing the Savai Gandharva Music Festival annually as homage to his guru Pandit Savai Gandharva. तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. That Pandit Savai Gandharva was associated with. So he was actually the teacher of Bhimsen Joshi, and on his name Savai Gandharva Music Festival was started. The year-long, why it was news? Because the year-long birth centenary celebration of Doyen of Music Pandit Bhimsen Joshi has begun from last day, February 4th. Next question, very important. New START Nuclear Arms Control Treaty. First time this treaty came into force So it came into effect in the year of 2011 for the first time. So here C is the right answer. C. ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ US जो बाइडेन हैज़ एग्रीड टू एक्सटेंड दिस tenure of this treaty for next 5 years. The treaty limits US and Russia to deploy no more than 1,550 strategic nuclear warheads each, imposes restrictions on land and submarine-based missiles and bombers to deliver them. And now the treaty will be extended till 5th of February 2026. Earlier, President Trump refused to extend the term of this treaty, but now both the presidents have agreed. If you are preparing for UPSC or state PCS examinations or EPFO and want to learn economy in full detail, then you can enroll into this batch. The course fee is just ₹599, which is a very pocket-friendly price, and the subscription link has been provided below in the comment section as well as in the description box of the video. मैंने वहाँ पे इकोनॉमी को बहुत हिंदी और इंग्लिश में समझाया है कॉन्सेप्ट्स को, ताकि जिन्हें इंग्लिश थोड़ी कम समझ आती है वो हिंदी में भी आसानी से समझ सकें. साथ ही आफ्टर सब्सक्राइबिंग you have to send your confirmation here at pointstudent2020@gmail.com. If you are preparing for UPSC and PCS and want to purchase the entire course, then the fee for that is just ₹2499. And again, you can choose to pay it in 2 installments, and the link for subscription have been provided below in the comment section as well as in the description of the video. साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद आपको कंफर्मेशन भेजना होगा एट दिस email ID pointstudent2020@gmail.com. Next question now, the IUCN status of groundhog is. तो groundhog का IUCN status है least concerned. So here C is the right answer. यहाँ पे ये है groundhog, कुछ ऐसा दिखता है squirrel जैसा. And why it was in news? Because on February 2nd, US and Canada marked Groundhog Day, which is an annual tradition in which the groundhog predicts whether winter will continue or give way to spring soon. And this year groundhog, which is also called as Punx sutavanefil, has predicted a longer winter.
इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुडचक। और यह है क्या, तो इट इज़ अ रोडेंट ऑफ द फैमिली स्क्वेरिडे which belongs to a group of large ground squirrels known as marmots. It is native to North America, so it is basically found in US and in Canada. Its IUCN status is least concern. Next question now. Consider the following statements about Aero India. So it is a biennial air show, यानी कि ये हर 2 साल पे होता है, ना कि हर साल. And aviation exhibition held in Bengaluru एट येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन। तो बहुत सारे फैक्ट्स पे हमें ध्यान देना है एक ही स्टेटमेंट में। पहला तो ये कि एक बाई एनियल है, साथ ही एक एयर शो है और ये होता बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में भी कहाँ पे, तो येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में। तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स सही हैं, सो फर्स्ट इज़ राइट। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सी है हमारा सही आंसर। और पहला इसका एडिशन हुआ था इन 1996 एंड दिस टाइम इट इज़ द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन हाइब्रिड मोड दिस टाइम विथ अ कंकरेंट वर्चुअल एग्जीबिशन टू इनकरेज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नासा हैज़ अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन एज इट्स एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। तो भव्या लाल को नासा ने अपॉइंट किया है एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, सो हियर ए इज द राइट आंसर। एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, भव्या लाल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस एट नासाज हेडक्वार्टर एंड विल वर्क टुवर्ड्स शेपिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस। Previously, as the senior White House appointee at NASA, she was a member of the Biden Presidential Transition Agency review team for the agency and oversaw agency's transition under the administration of President Joe. Now let's see some more points in news. Very important here. Oxford Language has chosen Atmanirbharta, which in English means self-reliance, as its Hindi word of the year for 2020. तो आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है 2020 का। 2021 होना तो अभी बाकी है, तो 2020 का आत्मनिर्भरता हैज़ बीन चोजन एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। 2019 में ऑक्सफर्ड हिंदी वर्ड था संविधान और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2019 में बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द CAA, फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, फिर जब राम जन्मभूमि वहाँ पे बाबरी मस्जिद वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस पर भी काफ़ी न्यूज़ में डिबेट चलता रहा। ऐसे में साथ ही हिंदी व्हेन इट इज़ स्पोकन इन इंडिया लार्जली, तो विच एवर वर्ड विल रिमेन इन न्यूज़ फॉर द इंटायर ईयर इन इंडिया विल क्वाइट ऑब्वियसली बिकम द वर्ड फॉर दैट ईयर। तो संविधान वॉज चोजन एज द वर्ड, हिंदी वर्ड फॉर ईयर 2019 एंड दिस ईयर फॉर 2020 इट हैज़ बीन चोजन फॉर आत्मनिर्भरता। हालांकि एक बात ध्यान दें कि इवन दैट आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंट हैज़ बीन चोजन एज द वर्ड ऑफ ईयर 2020, it does not guarantee that it will be added into the Oxford Dictionary. And for 2020, Oxford Language has not chosen any single word in English. देखिए हिंदी के लिए तो सम आत्मनिर्भरता को चुन लिया गया, but for English no single word has been chosen. Why? Because they believe that the year cannot be summed up using one single word. Why? Because there was many major events. That is why they have released a report titled as Words of an Unprecedented Year. I repeat, they have released a report titled as Words of an Unprecedented Year, in which they have analyzed themes such as COVID-19, terms like lockdown, social distancing, Black Lives Matter and other. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। Black Lives Matter प्रोटेस्ट चला था US में, फिर सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया इन द इंटायर वर्ल्ड, फिर लॉकडाउन वर्ड वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में दे हैव गॉन फॉर अ टाइटल कॉल्ड एज वर्ड्स ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ईयर। साथ ही 2019 में इंग्लिश वर्ड कौन सा था? इन 2019 दे हैव चोजन द वर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी। इफ़ यू रिमेंबर 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी ग्रेटा थुनबर्ग एक यंग गर्ल थी जिन्होंने बहुत फेयर्स डिबेट किया था एंड स्पीच दिया था ऑन क्लाइमेट इमरजेंसी। सेवरल कंट्रीज ऑल्सो डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी इन दैट कंट्री, तो ये वर्ड चुन लिया गया था फॉर 2019। एंड इन 2018 द वर्ड टॉक्सिक एंड इन 2017 इट वाज
youthquake, which was chosen as the English word for that year. Next point now. After strong opposition from trade unions across the country, Sri Lanka has unilaterally pulled out of 2019 agreement with India and Japan. वो एग्रीमेंट था फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट। तो श्रीलंका में अक्सर देखा जाता है कि इंडिया जो भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है वहाँ के ट्रेड यूनियंस और लोकल प्रोटेस्ट अक्सर उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। 2019 में इंडिया श्रीलंका ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। देखिए ऐसा क्यों होता है, अक्सर वहाँ लोकल प्रोटेस्ट क्यों होता है अगेंस्ट द प्रोजेक्ट डन बाय इंडिया? बिकॉज रिलेशंस तो अच्छे रहे हैं इंडिया श्रीलंका, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी रहा है। बुद्धिज़्म जिसका ओरिजिन इंडिया से हुआ इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका, बट डिस्पाइट द फैक्ट मेजर जो डिस्प्यूट का रीज़न है दोनों के बीच वो ये है कि सिन्हला और बुद्धिस्ट डिस्प्यूट, एथनिक डिस्प्यूट जब चल रहा था श्रीलंका में तो इंडिया ने इंटरवीन किया था मिलिटरीली। दैट हैज़ नॉट गॉन वेल विद द पब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो तब से अब तक जो पब्लिक ओपिनियन है अगेंस्ट इंडियाज़ इंटरवेंशन इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिकम अ डिटर्मिनेंट फॉर द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। दूसरी तरफ चाइना जो है वहाँ ना ही वो चाइना बॉर्डर शेयर करता है श्रीलंका से, ना ही कोई एथनिक इंटरवेंशन की कोई बात आती है। तो चाइना का जितना प्रोजेक्ट है इन श्रीलंका वहाँ कोई मेजर प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो चाइना के लिए इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज रिलेशंस विद श्रीलंका। सी जब भी जिस कंट्री के साथ एथनिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं एक्चुअली वो कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई यूरोपियन कंट्री ही क्यों ना हो। जहाँ भी इतनी सिमिलैरिटीज़ होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वहाँ भी इतनी सिमिलैरिटी है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नेपाल एंड नॉर्दर्न इंडिया लाइक स्टेट्स ऑफ बिहार एंड यूपी। तो जहाँ भी एथनिक सिमिलैरिटी होगी वहाँ पे इशू बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर उसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया देन द मैटर goes out of hand. So I hope you have found the video useful. If you have found it useful, then don't hesitate to like the video and share the video with your friends. Also subscribe and press the bell icon. We will meet again with the same contents in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.